Now, what are the major difference? First, it is double-stranded structure. Helical structure. ऐसा होता है, दिखाया था, ठीक है, ऐसे. So these strands are made up of sugar and phosphoric acid, and here this ladder-like structures are made up of what? It is made up of the nitrogenous base, purine and pyrimidine. Okay. फिर मैंने बताया था कि if this is the 5' end, so it is a 3' end. Okay. Now it is the 3' end, it is the 5' end. मैंने बताया था कार्बन नंबर कौन सा है, इधर 5 नंबर है तो इधर 3, क्योंकि अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स का अपोजिट होता है शुगर मॉलिक्यूल्स का. ठीक है. नाउ व्हेन यू लुक एट द फर्स्ट डिफरेंसेस, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड non-helical structure, non-helical structure. So what I have discussed that the RNA is like that. There is a single stranded structure where the nitrogenous base are arranged like that. Okay, this is the RNA. Now what is the second differences? Second differences is at the sugar level. Here sugar is deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. Okay. At the deoxyribose sugar is a pentose sugar, 5-carbon sugar. It is a pentose sugar, but it is deoxyribose because at 2' end oxygen is missing. 2' carbon के ऊपर oxygen is missing in the sugar molecule. Second number carbon पे oxygen missing है. Here when you look at the sugar is the ribose. Again it is a pentose sugar. Pentose sugar. So what here at the 2' carbon oxygen is there. यहाँ पर 2' carbon के ऊपर क्या है? Oxygen and OH both are present. OH है यहाँ पे, simply H है. O is missing. Only H is there. Okay. This is another differences. What is the next difference of the DNA and RNA? Okay. When you look at, then what you observe? Nitrogenous bases are present. Here also nitrogenous bases are present. What are the nitrogenous base? Pyrimidine. Pyrimidine are of two types. I mean cytosine. Then urine base are also there. Adenine, guanine.
here when you look at pyrimidine are also there, but here at the place of thymine, which is missing here, uracil is present, cytosine is present, but here purine is common. There is no difference in purine. Okay. Now, from DNA, RNA forms, the process is known as transcription. बताया था ना, transcription. And from RNA, the DNA forms, we called it reverse transcription. Reverse transcription. Okay. And majority of the character inherited by the DNA. DNA is a genetic material. Okay. DNA finally expressed as a protein and then function करना होगा तो प्रोटीन का फॉर्म में होगा. तो DNA first converted into RNA. and RNA are of several types. 3 RNA आपके लिए मैंने डिस्कस किया था. एक बताया था आपको क्या, एक mRNA मैसेंजर RNA, एक राइबोसोमल RNA, एक ट्रांसफर RNA. 3 RNAs which help in the protein synthesis. But apart from that, there are various RNA are present. Okay. तो बहुत सारे RNA, बहुत सारे टाइप के RNA होते हैं. अभी 3 आपके काम के हैं, tRNA, mRNA एंड rRNA. R मीन्स राइबोसोमल, राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है. मैसेंजर RNA, ये जो DNA से RNA कन्वर्ट हुआ, इसके ऊपर DNA की कोडिंग ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है ना, DNA कोडिंग इज ट्रांसफर्ड देयर एंड व्हाट हैपन, मैसेंजर RNA. मैसेंजर नाम क्यों है? क्योंकि उन्हीं की कोडिंग को रीड कर और क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, इसीलिए नाम है मैसेंजर. उन्होंने मैसेज DNA वाला कोड कर रखा है और मैंने बताया था कि वही 3 कोड पढ़कर एक एमिनो एसिड बनेगा और ऐसे कई एमिनो एसिड बनकर प्रोटीन बनाते हैं. ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है और tRNA हेल्प करता है. tRNA इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन. तो 3 तरह के RNA मिलते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंसेस मैंने तुम्हें बताया RNA और DNA के बारे में. ये बेसिक डिफरेंसेस याद रखो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, आपके लिए. अब चलो फिर से आते हैं. अभी तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपको समझा दिया. ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंसेस बता दिए. अब मैंने कल आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था जहां मैंने अपना जो है टॉपिक कल एंड किया था. मैंने बताया था कि इन यूकैरियोट्स, अगर व्हेन यू लुक एट द यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स को देखते हैं, देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, वी हियर ऑब्जर्व दैट इन यूकैरियोट्स chromatin is formed by the association of DNA to the basic proteins. What do you mean by the basic proteins? Okay, acidic and basic proteins. तो यहाँ basic proteins, with what is the name of that protein? Histones. Further, so what happened? Okay, the chromatin fiber, अभी क्या है, DNA जो है वो chromatin fiber बनाता है. And this chromatin fiber after condensation, okay, it forms what? The chromosomes. ये chromosomes बनाते हैं. Now, so what happened? Say for example, if this is the DNA, if this is the DNA,
ओके, दिस डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये सिंपली ये तो आपको डबल हेलिकल ऐसा दिखता है, बट ये ऐसा थ्रेड लाइक दिखाई देगा। और ये क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। से दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। So this thread-like structure bind along this protein molecules. Again, this thread is here. Again, here the molecules are there. The histone proteins are there. Again, it binds along this, and it started condensing. ये जो है, ये पहले एक लंबा थ्रेड था, ये लंबा थ्रेड इस हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन, this is histone protein. You must keep in mind the name, because again this is a very important question, and this is the DNA. So DNA, when bind with the histone protein, it condensed and formed the chromatin. This chromatin further condensed and form the chromosomes. What it forms? The chromosomes. So what are chromosomes? Chromosomes are nothing but the condensed DNA. वो condensed DNA ही है. Okay, getting my point? Yes or no? And in human being, as you know, 23 pairs of chromosomes are present. 23 pairs of chromosomes means 46 chromosomes are present. Okay, chromosomes are present in the human being. So you should keep in mind these facts. ये आपको याद रखना है, ठीक है? You must keep in mind. Now let's comes to the next point. तो इस तरह से ये हिस्टोन प्रोटीन ने क्या किया, ये ऐसे कवर कर लिया, बट डीएनए उसके अलोंग जो है इंटैंगल होता है, ठीक है, इंसर्कल करता है, और इस तरह से कंडेंस्ड होता चला जाता है और फॉर्मेशन करता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ मैंने एक डिफरेंसेस दिखाया है डीएनए और आरएनए के अंदर। तो ये देखो, अभी अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए से ही आरएनए बनते हैं, और आरएनए बनने के लिए पहले डीएनए क्या करता है कि ये जो डीएनए तुम देख रहे हो डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद इसी कोड्स को पढ़ते हुए, जैसे एडेनिन और गुआनाइन, यूरा, ऐसा अरेंजमेंट है, इसी कोडिंग को पढ़कर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और आरएनए और डीएनए को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो ये डबल हेलिकल मॉडल है, डबल स्ट्राइप्ड है, ये सिंगल है, लेकिन उसके अलावा देखो यहाँ टी है तो यहाँ टी नहीं है, यू है, ठीक है ना, बाकी सेम है। और शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ राइबोज है, और यहाँ शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। अब आरएनए के बारे में जब बात करें तो मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ 17 ऑड टाइप ऑफ आरएनए हैज बीन डिस्कवर्ड, लेकिन आपके लिए 3 ही आरएनए इम्पॉर्टेंट है, नॉट ऑल द आरएनए। नाउ so I had mentioned here the types of RNA. There are different type of RNA exist in the cells, I had discussed, okay. But when you look at for you people, only these 3 are important. One is the messenger, second is the transfer, and third is the ribosomal RNA. In short, it is known as mRNA, tRNA, and rRNA. Okay. Now, why the messenger RNA? Because it transmit the genetic information from the cell nucleus to the cytoplasm. अब देखो, मैंने अभी जब सेल का स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, ठीक है। ये डीएनए जब सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी दोनों सेल्स में आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना।
इन बोथ द सेल। दिख रहा है ऊपर वाला सेल नहीं दिख रहा है आपको? ओके, सो when the cell is divided, during that cell division DNA replicate अपना नंबर डबल करेगा, तभी तो इसमें भी आएगा और ऊपर वाले सेल के भी न्यूक्लियस में जाएगा। ओके, वो प्रोसेस मैं बताऊंगा बाद में। दूसरी बात है, इसी डीएनए से आरएनए बनेंगे। एमआरएनए का काम क्या, मैंने बताया कि सेल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस। यहाँ से मैसेज यहाँ लेकर आना है, जेनेटिक मैसेज, तो ये मैसेंजर आरएनए काम करेगा। So what I have mentioned here, that what is the function of mRNA? It transmits the genetic information which is carried by the nucleus. Who carried the genetic information from parents to the offspring? The DNA. And where the DNA is present? DNA is present in the nucleus, in eukaryotic cell, because in eukaryotic cell the nucleus is well developed. We had already discussed. And this DNA contains the genetic information. From this DNA, the RNA forms, and then RNA brings that message into the cytoplasm. सेल के साइटोप्लाज्म में लाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां था, उसको कैरी करके लाए। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर आरएनए। What is the role of transfer RNA? Carries amino acid to the site of protein synthesis. ठीक है, मैसेंजर आरएनए का शेप ऐसा होता है। टी शेप्ड। कैसा होता है? टी शेप्ड। अब अगर ये क्या है, एमआरएनए के साथ बाइंड किया, एमआरएनए के साथ अरेंज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। एमआरएनए के ऊपर मैंने कहा था कि कोडिंग होती है, जैसे ए है, जैसे यू है, जैसे जी है। इन तीन कोड्स को पढ़कर वो एक अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, फिर ये एमआरएनए आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर वो आगे चला गया तो यहाँ जो है तीन कोड, मान लो GUZ, गुआनाइन, यूरासिल, गुआनाइन, ऐसा अरेंजमेंट है। ये अगर इसके नीचे चला गया तो फिर यहाँ पर एक और अमीनो एसिड ये बनाते हैं। काम क्या है टीआरएनए का? कैरीज द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है वहाँ अमीनो एसिड को लाना। कैसे? इस कोड को रीड कर कर जो एमआरएनए के ऊपर है। सो बोथ दिस एमआरएनए tRNA is help along with the rRNA in protein synthesis. कोडिंग यहाँ है, बस इस कोडिंग से क्या होगा, इस कोडिंग से अमीनो एसिड को लाना है, बनाना है, वो लेके आएंगे ये tRNA, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो वन बाय वन दे रीड दिस कोडोन and form and brings the amino acid here, and as ये ऐसा कोड आता रहेगा उतना अमीनो एसिड ये ले आकर अरेंज करते रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रोटीन बन जाएगा। द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज प्रोटीन। सो दिस इज द ट्रांसफर आरएनए रोल। नाउ व्हाट इज द राइबोसोमल आरएनए? मैंने राइबोसोम बताया था कि राइबोसोम में दो हिस्से होते हैं, वन इज द बिगर, अनदर इज स्मॉलर। इसको थोड़ा बड़ा बना दो। से फॉर एग्जाम्पल ये जो तुम देख रहे हो ये कहाँ अटैच्ड होते हैं ऐसे, ये अगर मैं बना दूं, ये बिगर मॉलिक्यूल है ये राइबोसोम का, और इसके ऊपर ये स्मॉलर है हिस्सा। अगर इसको देखो तो ये है राइबोसोम का बड़ा हिस्सा, ये है छोटा हिस्सा। इसी के बीच ऐसे एमआरएनए और यहाँ tRNA अरेंज हो जाते हैं, और इसके पास राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम के पास अपना एक आरएनए है जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। So what I have mentioned here, which has a large 60S and minor
40s। यूकैरियोट में मैंने आपको बताया था 80s राइबोसोम होता है, ठीक है, 80s। और 80s के दो पार्ट होते हैं, 60s छोटा वाला, बड़ा वाला 40s। एस मैंने बताया था, एस रिप्रेजेंट सेवेड वर्ग, सेवेड वर्ग, इट इज अ यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ लिखा है एंड इट इन्वॉल्व इन एमिनो एसिड असेंबलिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनो एसिड असेंबलिंग में ये भी रोल प्ले करते हैं। तो इसका काम है जेनेटिक मटेरियल्स जो डीएनए के पास है उसके अकॉर्डिंग कोडिंग होता है एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए की कोडिंग को ट्रांसफर आरएनए रीड कर कर और क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को यहाँ लाते हैं, उसमें राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करता है और ऐसे चेन ऑफ एमिनो एसिड्स बनकर एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। वो प्रोटीन्स जो है यहाँ एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप से ये प्रोटीन ऐसे निकलता है और फिर यहाँ से कोश की जितनी ज़रूरत है उतने छोटे छोटे और बड़े टुकड़े प्रोटीन्स के निकलते चले जाते हैं। सो मैंने यहाँ ये भी बताया है कि अदर टाइप ऑफ आरएनए आल्सो इंक्लूड ए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोसोलिक आरएनए, माइक्रो आरएनए, ए स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। देयर आर 17 odd type of RNA. But for you people, only 3 type of RNA is important: mRNA, tRNA and rRNA. इन 3 के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा आरएनए के ऊपर, और तीनों का कंबाइंड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए मैसेज का कोडिंग किया, डीएनए से जो कोडिंग था उसको ट्रांसक्रिप्ट किया, ट्रांसफर का है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, एमिनो एसिड, उसमें राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करता है। राइबोसोमल आरएनए एसोसिएटेड विद द राइबोसोम, नेम ही है राइबोसोमल। सो दिस इज अबाउट द आरएनए। ये आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। देखो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट, टीआरएनए, ठीक है ना। अभी ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, टीआरएनए का। देखिए ये, अब देखो क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैंने क्या बताया, व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस्ड डीएनए। व्हेन द डीएनए coiled along the histone protein, due to coiling along the histone protein, the DNA condensed and formed the chromosomes. Okay, तो डीएनए के पास जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली डीएनए ही से क्रोमोसोम बना है, तो क्रोमोसोम के पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। तो अगर ये लिखा हुआ है कि डीएनए कैरी द जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन, तब भी राइट स्टेटमेंट है। अगर ये लिखा है क्रोमोसोम कैरीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वो भी राइट है, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। द डीएनए's condensed form is the chromosome. Getting my point? So you must keep in mind. So what I have written here that about the chromosome, that in interphase nucleus, अब देखो अभी मैंने तुम्हें शेल डिवीजन नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। सेल डिवीजन में एक स्टेज आता है, उसको कहते हैं इंटरफेज। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है शेल डिवीजन्स के लिए, उस फेज को कहते हैं इंटरफेज। उस फेज में देखोगे कि सेल की साइजेस बड़ी होंगी, ठीक है। शेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन्स के लिए, उसमें डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि सेल अगर डिवाइड होगा तो अगर बॉडी का शेल्स है तो हर शेल्स में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जाने हैं, तो डीएनए का नंबर डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट होगा। तो सेल्स जिस स्टेज में खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन्स के लिए, वो इंटरफेज है, वहीं से सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती है। और जो हमारी बॉडी की लेंथ बढ़ी है, जो बॉडी का ग्रोथ हुआ है, जो बॉडी की ग्रिथ बढ़ी है, उसमें जो सेल डिवीजन हेल्प करता है, उस सेल डिवीजन का नाम है माइटोसिस सेल डिवीजन। बट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वह सेल डिवीजन
जो टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में होता है, और वो सेल डिवीजन जो फीमेल के ओवरी में होता है, ओवेरियन फॉलिकल सेल डिवाइड कर कर ओवा बनाते हैं, और टेस्टिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। वो जो सेल डिवीज़न है उसे मियोसिस कहते हैं। तो दो तरह के सेल डिवीजन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम देखें तो दो तरह का सेल डिवीज़न है, माइटोसिस और मियोसिस। बट जो कुछ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स, अमीबा जैसे एक एग्जांपल है, उसमें एक और टाइप का सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस की ही तरह, बट वहाँ माइटोसिस ना बोलकर उसे अमाइटोसिस कहते हैं, यानी माइटोसिस के आगे ए लगा देना है। क्या है सेल डिवीज़न मैं अभी पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। बट सबसे पहले ये समझ लें, क्योंकि जब मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूँ तो डीएनए और आरएनए डिस्कस किया है, तो यहाँ थोड़ा क्रोमोजोम्स भी समझ लेते हैं। क्रोमोजोम्स तुम्हें कब दिखाई देगा? क्रोमोजोम्स तभी दिखाई देगा जब क्रोमैटिन, यानी जो थ्रेड है पतला डीएनए का, वो जब कंडेंस्ड होगा तभी दिखाई देगा। और ऐसा कब दिखाई देता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोजोम तुम्हें कब दिखाई देता है कंडेंस्ड फॉर्म में? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहां मैंने क्या मेंशन किया? मैंने मेंशन किया कि द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. What does it mean? It simply means that in interphase, when the cell is now preparing her shell for the division, during that period of time, what you find that the chromatin means thread like structure is visible within the cell. बहुत क्लियर नहीं होता, पतला धागे की तरह दिखता है, ठीक है ना, विद इन द न्यूक्लियस। तो फाइब्रस लाइक दिखाई देता है तुम्हें, ठीक है। ये पहली इंफॉर्मेशन मैंने दी कि इंटरफेज में क्रोमोसोम कंडेंस नहीं दिखाई देगा, बहुत थिक नहीं दिखाई देगा, थिन दिखाई देगा, फाइब्रस दिखाई देगा। नेक्स्ट है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन, ओके, बिकॉज अभी सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो कई स्टेज में पूरा होता है। द सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। वहां क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगते हैं। कैसे ये अपीयर हो गए क्रोमोसोम? पहले तो थ्रेड लाइक था, क्योंकि ये थ्रेड जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ क्वाइल और कंडेंस्ड होकर अब थिक हो गया और वो विजुअलाइज होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट है, द क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। तो जो क्रोमैटिन है वो क्या रखता है? बोला डीएनए और हिस्टोन तो होते ही हैं, कई बार नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी होता है, ठीक है। पर ज्यादातर क्वेश्चंस तुमसे क्या आएंगे कि व्हाट कंटेन्स बाय द क्रोमैटिन फाइबर? क्रोमैटिन फाइबर्स हैविंग द डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, you must keep in mind. But sometimes the non-histone protein and RNA are also present. बट उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार में, हिस्टोन के ऊपर आएगा, आ भी चुका है, तो दिमाग में फिट रखना है आपको, ठीक है। और इन स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस। नाउ a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA. इसके बारे में भी मैंने बताया कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर देयर। बोला कि एक ह्यूमन सेल के अंदर लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड है। अब शेल इतना माइन्यूट है, छोटा है, उसमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, तो क्वाइल्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो डीएनए जो देख रहे हो 2 मीटर लंबा, वो इसी से तो बना है 23 पेयर क्रोमोसोम्स। तो ये 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनको काउंट करोगे तो लगभग ये कितने मीटर लंबे हो जाएंगे? 2 मीटर लॉन्ग।
In every cells there are 23 pairs of chromosome in your body shells, which is known as somatic shell. और जो टेस्टिस ओवरी के सेल हैं उसे रिप्रोडक्टिव शेल्स कहते हैं. तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के शेल्स हैं, ठीक है. वन इज सोमैटिक शेल्स. जब भी वर्ड आएगा सोमैटिक शेल, इसका मतलब है तुम्हारे बॉडी का शेल्स, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं एक्सेप्ट वन. दूसरा कैटेगरी है रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्रजनन या जनन कोशिका कहते हैं, और इसे कायिक कोशिका कहते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स इन मेल. मेल को बायोलॉजी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, दिस इज मेल. So in the male testis, reproductive cells are present. In the female ovaries, पेयर ऑफ ओवरी होती हैं दोनों साइड में फीमेल की, और पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल में. तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं. सोमैटिक सेल का जब डिवीजन होता है तो प्रोसेस है माइटोसिस, एंड व्हाट इज द प्रोसेस? meiosis. Okay, meiosis. Further I will differentiate between mitosis and meiosis, so don't worry. भी मुझे बताना है वो सेल डिविजन्स. ओके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना. तो मैंने कहा कि जो शेल्स है, शेल्स के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का अगर लेंथ निकालो ऑल टुगेदर इट इज 2 मीटर लॉन्ग. ओके, नाउ एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली द डिवाइडिंग सेल, यानी सेल डिवीजन के समय, स्पेशली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. अभी ये मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है ना. ऑन द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच द डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर आर प्रेजेंट. तो चलो पहले हम लोग थोड़ा देखें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. ये देखो, ये है क्रोमोसोम्स. ये तुम जो देख रहे हो, ये सेंटर जो होता है, सेंटर में क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर्स होते हैं. अभी अगर मैं एनोटेशन ले लूँ, नहीं भी लूँ तो देखो, यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. This structure is known as centromere. 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 In the center of the chromosome. जहाँ ये ज्वाइंट करते हैं, यहाँ ऐसा दिखता है. अभी यहाँ और क्या तुम्हें दिखाई देगा विद दिस? यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है. इसे कहते हैं काइनेटोकोर. काइनेटोकोर, ठीक है. इसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर. अब देखो, तो यहाँ सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर लिखा हुआ है. अभी देखो, ये दिस इज नोन एज क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड्स. यहाँ क्या है? यहाँ ये कैसे बनते हैं? ये डीएनए हिस्टोन्स के साथ ऐसा कंडेंस्ड है. Due to condensation of DNA, this structure form.
देखो अंदर क्रोमैटिन फाइबर हिस्टोन्स के साथ ऐसे कंडेंस्ड रहते हैं। वेयर द सेंट्रोमियर इज अटैच्ड, वहां पे क्रोमोसोम थोड़ा पतला हो गया ना, कंस्ट्रिक्शन है, इसलिए इस पोजीशन को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कभी कभी क्या होता है, यहाँ जो ये तुम देख रहे हो ना क्रोमैटिड, यहाँ पर भी एक ऐसा टिल जुड़ा होता है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी बनते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस का पोजीशन कहाँ है? अलोंग द सेंट्रोसोम। सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, पहले ये डायग्राम्स बना लो, ये हैंडमेड, क्योंकि ये आपके नोट्स में होगा, बट ये बना लेना क्योंकि इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो, जब जब क्रोमोसोम होता है तो इसके ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। अब देखो, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, से फॉर एग्जांपल कि ये फादर से आया, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में, और इसी तरह का एक दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, मदर से भी आएगा, सेम साइज, सेम साइज, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। So one chromosome having, now what you find, 4 chromatids, 4 दिख रहे हैं। अब देखो, ये और ये क्रोमोसोम एक साथ आएंगे तो पेयर कहोगे, दिस इज वन पेयर। तो सेल के अंदर सेम साइज वाले क्रोमोसोम, जब अभी इनके ऊपर यहाँ पर डीएनए का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक, ये मैंने कर दिया, इसका मतलब है यहाँ का जो सेगमेंट है ये खास कैरेक्टर रखता है, ये सेगमेंट एक खास कैरेक्टर रखता है, ये सेगमेंट एक खास कैरेक्टर रखता है, इसे कहते हो जीन। ये क्या कहते हो इसे तुम? जीन। सो जीन इज व्हाट? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब क्या करें, अगर मैं ये टुकड़ा कट कर दूं यहां से, तो ये जीन यहां से खत्म हो गया, और वो जीन खत्म हो गया तो वो कैरेक्टर हट जाएगा। अभी जीन थेरेपी में क्या करेंगे, मान लो ये जीन जो है एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो डिजीज कॉज कर रहा है, ये जीन डिलीटरियस है, हार्मफुल है, हम क्या करेंगे, इस जीन को रिप्लेस कर देंगे। जीन थेरेपी में हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर कि उसका कौन सा सेगमेंट क्या प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन यूजफुल है, हार्मफुल है। जो यूजफुल वाले हैं, ये किसी कारण से अगर हार्म कर रहा है, तो हम यहां से इसे रिप्लेस करेंगे जीन थेरेपी में। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो व्हाट आर द जीन्स? जीन्स आर नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। उस सेगमेंट के ऊपर जो कोडिंग है ATGC की, उससे जो आरएनए बन रहा है, उससे जो प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वो यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। डिलीटरियस है, हार्मफुल है, तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, उसे हटाएंगे, ठीक है, जीन थेरेपी में। तो ये इस तरह से कैरेक्टर्स कैरी होते हैं, ठीक है। अब ये और ये जो समान क्रोमोसोम होंगे हर तरीके से, इसके ऊपर जो जीन का पोजीशन उधर भी वही होगा, यहाँ जितनी साइज उसकी भी यही साइज, तब हम इस तरह के क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, एक दूसरे के
समान क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो यहाँ वर्ड है होमोलोगस, यहाँ दो हैं, ब्लू और रेड, दोनों एक साइज शेप स्ट्रक्चर के हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? होमोलोगस। इसको क्या बोलोगे? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम। और यही दो क्रोमोसोम अगर दो डिफरेंट साइज के हो, जीन का लोकेशन भी अलग अलग हो, तो क्या टर्म आता है? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रोलोगस। So what is the difference between heterologous chromosome and homologous chromosome? Homologous chromosomes are similar to each other in their size, structure, arrangement of gene. Heterologous dissimilar होते हैं। Getting my point? ये टर्म आएगा तो समझ आएगा what is the meaning of homologous and what is the meaning of heterologous? Yes or no? ओके, ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? यस और नो आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बता दी। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अभी ये क्रोमोसोम के बारे में बेसिक चीजें तुम्हें बताई कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं। क्रोमैटिड होता है, सेंट्रोमियर होता है, कैनेटोकोर होता है। क्रोमोसोम दो सिमिलर साइज शेप स्ट्रक्चर के हों तो होमोलोगस कहलाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो तुम देख रहे हो वो सब सिमिलर साइज वाले एक जगह आ रहे हैं तो पेयरिंग करते हैं। 23 जोड़े अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी बात है कि क्रोमोसोम्स में ये जो सेंट्रोमेयर का पोजीशन है उसके आधार पे क्रोमोसोम्स का टाइप्स है। ठीक है, कैसे टाइप्स है कैसे देख सकते हो? जैसे ये मैंने बनाया है, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेंटर में है, मिडिल में। हम इस टाइप को कहते हैं क्या? मेटासेंट्रिक। इस क्रोमोसोम्स का नाम क्या होगा? मेटासेंट्रिक। Metacentric. This chromosome where the centromere is in the middle. Where the centromere is, this centromere is in the mid point of the chromosome. Mid में है, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखो, if this is the centromere, look very carefully, and if this is a chromatid which is a longer, and here we find now the chromosomes positions change, the centromere position change slight upward. ये हिस्सा लंबा, ये छोटा हो गया। पहले ये दोनों बराबर हिस्से थे, ठीक है। ठीक है, इसको इतना भी बड़ा बना सकते हैं, फिर भी आपको थोड़ा ऊपर इसको दिखाना है। ठीक है, ये छोटा साइज हो गया, ये शॉर्ट आर्म हो गया और ये लॉन्ग आर्म हो गया कि नहीं? Centromere position is not in the mid, then this, when centromere in such position, okay, slightly upward to the mid, then it is known as submetacentric. क्या बोलते हैं उसे? submetacentric. मैं क्या बता रहा हूं? टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, submetacentric. Listen carefully. Again, it is a question. So not in the middle, slight upward to the middle, okay, or downward, जैसे भी होगा। अगर इधर होगा तो उधर लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, दिस इज द शॉर्ट आर्म, दिस इज द लॉन्ग आर्म, slightly up to the middle, it is the position, submetacentric, metacentric. Getting my point? Now when you look at, sometimes what happen, what you find that ये एकदम और ऊपर चला जाएगा, ये हिस्से और छोटे हो जाएंगे, ठीक है।
तो तुम्हारा क्या दिखाई देगा, से if this is and this is the centromere and very small chromatid are there, ऐसा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा, ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड, क्लोज टू द एंड। ओके, वो एंड के क्लोज है। अब देखो, तो मैंने कहा मेटासेंट्रिक इन द मिडिल, स्लाइटली अबव, सब मेटासेंट्रिक, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, देन इट क्रिएट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म। अब देखो, एक पोजीशन ऐसा होगा, दिस इज द क्रोमैटिड, दिस इज सेंट्रोमेयर ऑन द एंड। अब इधर होगा ही नहीं कुछ, इधर और कोई क्रोमैटिड नहीं है, एकदम टॉप पे चला गया, ये एंड पे चला गया, ऐसा शिफ्ट करता हुआ, कभी एक जमाने में यहाँ था, अभी ऊपर चला गया। टेलोसेंट्रिक कहते हैं, टेलोसेंट्रिक, टेल पे चला गया, एंड पर चला गया, सेंट्रोमियर इज एट एंड पोजीशन। So this, when the centromere is in middle, metacentric position. When the centromere is slightly upward to the middle, short and long arm created, okay, then it is known as submetacentric. When it is close to the end, very short arm created and a long, then acrocentric. And when it is reached to the end, telocentric. So on the basis of centromere position, there are various type of chromosomes present in the shells, including the human cells. Getting my point? Yes or no? ये डिफरेंस समझ आया? गुड। तो चलो फिर, समझ आया तो आगे बढ़े। ओके, दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम। और भी क्रोमोसोम्स को जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी तो मैं यहाँ पढ़ाया, थोड़ा सा जेनेटिक्स में मैं रोल पढ़ाऊंगा। So this is about the DNA, RNA, how the DNA condensed and formed the chromosomes I had discussed.